ویلکم بیک. سپریم کورٹ کا ہر جج آزاد ہے. ججز کو بریکٹ نہیں کیا جانا چاہیے. ججز پر تنقید نہیں ہونی چاہیے لیکن تعمیری تنقید ہو. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ کے صحافیوں سے ملاقات کے موقع پر گفتگو. کہا ہم سب ججز آپس میں بھائی ہیں. وہ وقت گزر گیا جب ججز نے ایک دوسرے کے خلاف پوزیشن لی ہوئی تھی. ججز کسی الزام پر جواب نہیں دے سکتے. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اپنی رائے کسی ساتھی دوست پر مسلط بھی نہیں کرتا. میری رائے ہے مشترکہ وزڈم کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. عدلیہ کے لیے گزشتہ 3-4 سال مقدمات کی وجہ سے بڑے سخت تھے. سپریم جوڈیشل کونسل کو متحرک کر دیا ہے. سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایات پر کارروائی چل رہی ہے. اے ڈی آر پر جسٹس منصور علی شاہ نے بہت کام کیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کو اے ڈی آر پر کام کرنے پر سلام پیش کرتا ہوں. فوجداری ٹیکس کے مقدمات کے لیے بھی اسپیشل بینچز کام کریں گے. گوادر اور کوئٹہ دورے پر لاپتہ افراد کے کیسز نے ہلا کر رکھ دیا. لاپتہ افراد کے کیسز کو ٹیک اپ کیا جائے گا. قیدیوں نے سالوں فیصلے نہ ہونے کی شکایت کی. قیدیوں کی اس شکایت پر میں بہت شرمندہ ہوا. خیبر پختونخوا کی 19 سرکاری جامعات میں وائس چانسلرز کی عدم تعیناتی کیس میں ایڈوکیٹ جنرل کے پی کو 6 فروری کو تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم. مزید جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے. بتائیے راجہ محسن. خیبر پختونخوا کی 19 سرکاری یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی عدم تعیناتیوں سے متعلق کیس ہے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کو 6 فروری تک تیاری کا حکم دیا گیا ہے. اور آج سماعت میں ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا کہ کیس میں اضافی دستاویزات جمع ہوئی جن کو پڑھنے کے لیے وقت درکار ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ 1 مہینے سے مقدمے کی دستاویزات جمع ہیں, جائزہ لینا آپ کا کام ہے. وکیل عمر گیلانی کا یہ کہنا تھا سماعت میں کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تعیناتی کے لیے قائم کمیٹی کو ختم کر کے دوبارہ بنایا گیا. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کے پی حکومت نے کمیٹی دوبارہ تشکیل دی لیکن ممبرز وہی پرانے تھے. اور پشاور ہائی کورٹ نے 22 اگست 2024 کو وائس چانسلرز کی تعیناتیوں کا جو عمل تھا اسے مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے ایڈوکیٹ جنرل کے پی کو کہ وہ آئندہ سماعت پر مکمل تیاری کے ساتھ آئیں. اور اب سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے 6 فروری تک جو فیصلے پر سٹے ہے اسے بھی برقرار رکھا ہے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کا میگا سیزن. کراچی کنگز کا میگا اسٹارز کا انتخاب. T20 کرکٹ کے سب سے خطرناک اوپنر ڈیوڈ وارنر کراچی کنگز کا حصہ بن گئے. اوپنر کے کریڈٹ پر 12,000 سے زائد T20 رنز ہیں. پہلی بار پی ایس ایل میں ان ایکشن ہوں گے. کیوی فاسٹ بالر ایڈم کی بھی کنگز کے اسکواڈ میں انٹری. عباس آفریدی کی بھی کراچی میں واپسی. نوجوان فاسٹ بالر نے ڈیبیو سیزن کراچی سے ہی کھیلا تھا. ڈائمنڈ اور گولڈ کیٹیگری میں کراچی کنگز کی پیک مکمل ہو گئی. ڈائمنڈ میں خوشدل شاہ اور گولڈ میں عامر جمال کا انتخاب کیا گیا. Decision on pick. David Warner, thank you Hassan Ali, he doesn't need it, very good. Karachi, your platinum, number 8 or your second pick is? We've gone for the Kiwi quick Adam Mill. Adam Mill. The final pick, it is pick number 10 for the Karachi Kings. We're going with Abbas Afridi. You've gone for your wild card? Sorry, I can't pick you. And we've chosen Abbas Afridi. ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کے پلیٹینم ڈائمنڈ اور گولڈ راؤنڈ میں فرنچائزز نے پک مکمل کر لی. کوئٹہ نے پلیٹینم میں فہیم اشرف, چیپمین اور فنالن کا انتخاب کیا. اسلام آباد نے آسٹریلیا کے میتھیو شارٹ کو چنا. لاہور نے نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل کو پک کیا. پشاور نے ٹام کیڈمور اور ملتان سلطانز نے مائیکل بریسویل کو ٹیم میں شامل کیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایچ بی ایل پی ایس ایل 10 کی ڈرافٹنگ کے لیے لاہور کے خوبصورت حضوری باغ میں شاندار انتظامات کیے گئے, مگر پروڈکشن کمپنی کے ناقص انتظامات نے میزبان کی محنت پر پانی پھیر دیا. پی ایس ایل 10 کی ڈرافٹنگ کے دوران ٹی وی پروڈکشن کا معیار انتہائی ناقص رہا. پروڈکشن کے نامناسب انتظامات سے پروگرام کے میزبان کو بھی پریشانی کا سامنا رہا. کبھی ایک مسئلہ تو کبھی دوسرا. پروگرام کے میزبان کو بار بار مائک نہ چلنے کی طرف توجہ دلانا پڑی. ماضی میں پی ایس ایل کی ٹی وی پروڈکشن شاندار رہی جس کو کئی دیگر ممالک نے کاپی بھی کیا. پی ایس ایل 10 کی ٹی وی پروڈکشن دیکھنے والوں کے لیے مایوسی کا باعث بنی. Working now, yes. It's not working at the moment. I can't hear you anyway. Maybe we could let you to use the Lahore Qalandars mic. Just check whether that's just going to work for you. I'll just ask a quick question. Just see whether this microphone works. Tom Kohler Cadmore, your mic isn't working, Moin Khan.
Mic still isn't working. Back to Shah Massoud. So it was a Multan Sultan's choice. That was what it was, not the Peshawar Zalmi. I apologise, it was the Multan Sultans. Have you made your choice? और मामला है £1 मिलियन रेफरेंस का, जिसका फैसला एक बार फिर मुअख्खर कर दिया गया है। फैसला तीसरी बार मुअख्खर किया गया है। अदालत ने फैसला वकला, बानी PTI और बुशरा बीबी की अदम मौजूदगी पर मुअख्खर किया है। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए। 8:30 बजे अदालत पहुंचा। बानी PTI को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम पहुंचाया, लेकिन बानी PTI और बुशरा बीबी पेश नहीं हुए। मुल्ज़मान के वकला भी अदालत नहीं पहुंचे। जज नासिर जावेद राना ने करार दिया अब £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। 23 दिसंबर को फैसला सुनाने की तारीख दी गई, जो 6 जनवरी तक मुअख्खर हुई। फिर 6 जनवरी को भी फैसला मुअख्खर करके आज की तारीख दी गई थी। अब यह फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं अलकादर ट्रस्ट भोंडा केस है जिसे हर सतह पर चैलेंज किया जाएगा। शिबली फराज ने कहा बानी PTI आपकी तहवील में हैं, पहले भी उनकी गैर मौजूदगी में सजाएं सुनाई गई हैं। सलमान अकरम राजा ने बताया बरतानिया से रकम आने में वजीर आज़म और काबीना का कोई किरदार नहीं था। रियासत को नुकसान नहीं बल्कि 20 अरब का मुनाफा हुआ। 90 मिलियन पाउंड जो है वो आपके बरतानिया की NCA ने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में जमा कराया। वजीर आजम इमरान खान साहब का और बुशरा बीबी का इससे कोई लेना देना ही नहीं। बिल्कुल भोंडा केस, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। अल्लाह ताला हर जगह पे ये चैलेंज होगा। तरक्याती काम मुल्क में हो नहीं रहा। हसन इकबाल क्या कर रहे हैं वहां पे? बयानबाजी तो लंबी चौड़ी करता है, प्रोफेसर बना होता है, पर उसकी जो आपकी डिलीवरेंस है वो 0/0। सीरतुल नबी यूनिवर्सिटी का केस जिसको कि एक बहुत ही पहले भोंडे तरीके से चलाया गया के फैसले में मुख्तलिफ ताखीर हुई। जाता है कि खान साहब मौजूद नहीं थे। खान साहब तो भाई आप ही की कस्टडी में। तो फिर ये कैसे हुआ? और माजी में तो हमें कई ऐसी मिसालें मिली हैं जिसमें कि चाहे वो इद्दत केस हो चाहे वो तोशाखाना हो, जिसमें कि बगैर उनकी मौजूदगी के सजा सुना दी गई। ये बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है कि इस मुकदमे में कोई ऐसी रकम थी जो रियासत पाकिस्तान की रकम थी और वो पाकिस्तान की काबीना ने वज़ीर आज़म इमरान खान की सरपरस्ती में उस अकाउंट में डाल दी जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रकम जमा करानी थी और इससे उनको कोई फायदा पहुंचा दी। बहुत ही बड़ी गलतफहमी है और जानबूझकर ये गलतफहमी फैलाई गई। और वो रकम उस अकाउंट में रही जो सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था, वहां से एक पैसा कहीं नहीं निकला। उस रकम पर मुनाफा जो है वो बदस्तूर रहा। वो रकम तमाम की तमाम अब खजाने में जा चुकी है, रियासत पाकिस्तान के खजाने में। बानी नहीं, हुकूमत दबाव में है। अलीमा खानम का कहना है डील का लफ्ज़ सुनकर तंग आ गए हैं। बानी तो खुद चाहते हैं अलकादर केस का फैसला जल्द हो जाए ताकि वो इसको हाई कोर्ट लेकर जाएं। अलीमा खानम का कहना था आज भी फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। इमरान खान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये इमरान खान का ही डिमांड था कि इसको जल्दी हाई कोर्ट लेकर जाएं केस को। वो 1 महीने से कह रहे हैं कि इसके ऊपर सजा सुनाओ। जज साहब को बड़ा मुश्किल पेश आएगी जो वर्डिक्ट है उसके अंदर क्या लिखें। हुकूमत बहुत ज्यादा प्रेशर में है, तंग आ गए डील का लफ्ज सुन के। क्या करना चाह रहे हैं ये तो आज आप देखें कि ये इतने अंडर प्रेशर हैं कि इमरान खान को सजा भी नहीं सुनाने की इन्होंने आज सहमत की। इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सजा सुना दे इमरान खान को। सादिक और अमीन कहते कहते बानी PTI ने तारीखी डाका डाल दिया। इस पर पार्टी को उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। कहा कमीशन बाद की बात है, पहले बानी 50 अरब रुपए का हिसाब दें। फैसला सुनाने के लिए मुल्जिम का अदालत में होना जरूरी है। ये जरूरी है कि जो मुल्जिम है वो मौजूद हो अदालत में। ये केस एक होता है 100%, एक होता है 500% वाजे हो। इतना बड़ा डाका है पाकिस्तान की तारीख की करप्शन का। इसके ऊपर तो PTI को अपने लीडर का गिरबान पकड़ना चाहिए। सादिक और अमीन कहते कहते आपने 50 अरब का डाका डाल दिया। आज अगर कोई PTI वाला इमरान खान को अपना लीडर कहता है तो वो भी इस चोरी में शरीक है। चोरी के पैसे से जो भी माल बनेगा वो नाजायज होगा। डाका जो है वो अगर आपने डाला है तो उस जुर्म की आपको सजा मिलेगी। कमीशन तो बाद की बात है ना, पहले तो ये 50 अरब रुपए का हिसाब दें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला मुज़ाकरात की वजह से मुअख्खर नहीं हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो NRO चाहते हैं उन्हें नहीं मिलेगा। महमूद अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान को किन अल्फाज से पुकारते थे आज उनके पैरों में बैठे हैं।
के पी में लूटमार का बाजार गर्म है। ये फैसला मुलतवी है। नॉर्मली ये तो कोर्ट का डिसीजन है, कोई मज़ाकरात की वजह से तो नहीं है। अगर आपके करतूत बुरे थे, गलत थे, तो आपको सज़ा होगी, चाहे वो एक दफ़ा नहीं 5 दफ़े भी मुलतवी हो जाए। किसी का ये ख्याल है कि NRO मिलेगा, NRO तो मिलना नहीं है। जो लोग कहते थे कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते, ये फॉर्म 47 वाले हैं, आज खुद फोने कर रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी मज़ाकरात करें। माजी में भी जब 16 महीने की हुकूमत थी, हमने PDM और इत्तेहादी जमातों को अपोजिशन के साथ बिठाया था। हम आज भी डायलॉग्स के फेवर में, लेकिन मुझे इस मखलूक से कोई उम्मीद नहीं है। महमूद खान चकज़ई, मौलाना फजल रहमान को क्या क्या नाम से पुकारते थे, आज उनके पाँव में पड़े हुए हैं। अच्छी बात होती कि मेरे सूबाई हुकूमत के जो कुछ वज़रा हैं 2-4 जमातें पढ़ लेते, हमें बुजुर्ग की बदवा लोगे कि ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हो चुके हैं। लूट मार का बाजार गर्म है। वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकता, ये दहशतगर्दों के सहूलतकार है। मैंने APC बुलाई तो कि सूबाई हुकूमत का काम था। बानी तहरीक इंसाफ पर किया गया हर मुकदमा ठीक है, वो मुकदमे तो चला ही नहीं गए जो उन पर चलाए जाने चाहिए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सोची समझी साजिश के तहत प्रोपेगेंडा हो रहा है। मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बानी को तमाम मुकदमात में माफ़ कर दिया जाए। इमरान खान हर केस, हर मुकदमा उसका वो उसके ऊपर ठीक बना है। इमरान खान ने जुर्म किए हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स थे, जिस चीज़ में इन्वॉल्व थे, वो किसी से छुपी हुई बात है। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने घड़ी बेच के घर के सामने से सड़क बनाई। सारी सोची समझी साजिश के तहत ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो सरकार ने वो मुकदमे चलाए नहीं है जो कि वाकई मुकदमा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहे हैं। पीपुल्स पार्टी मुज़ाकरात की हिमायत करती है। हम मुज़ाकरात पार्टी से पार्टी टू पार्टी होने चाहिए। अगर PMLN या गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रही है, उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुज़ाकरात का मकसद ये नहीं है कि इमरान खान के किए हुए जो जुराइम है उनको माफ़ी उनको मिले जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशा खाना केस 2 में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। तफसीलात क्या हैं, हुसैन अहमद चौधरी से जानते हैं। बताइए हुसैन अहमद। जी देखिए, तोशा खाना 2 केस में अहम पेशरफ्त हुई है। बानी PTI और बुशरा बीबी का तोशा खाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है और दोनों ने स्पेशल जज सेंट्रल की जानिब से बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया है। 14 नवंबर को स्पेशल जज सेंट्रल ने तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई थी। दरखास्त में कहा गया है कि 14 नवंबर का फैसला, ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो खिलाफ कानून है। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस में बरी करने की इस्तदाद सामने आई है। दरखास्त में स्पेशल जज सेंट्रल, FIA और दीगर को फरीक बनाया गया है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।